اور اگر پولیس کا کوئی مستعد قسم کا دستہ آس پاس کہیں گشت کر رہا ہوتا تو ہمیں لینے کے دینے پڑ جاتے۔ مجھے امید تھی کہ صدیقی گاڑی تک پہنچ گیا ہوگا اور اب وہ دونوں بڑی بے چینی سے میرے منتظر ہوں گے۔ میں اپنے پستول کو سنبھالتے ہوئے تیزی سے گاڑی کی طرف توڑنے لگا۔ اس احساس سے میرے پیروں میں پر لگ گئے تھے کہ مجھے سڑک پر نصب کھمبوں کی روشنی میں بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ موڑ تک پہنچتے پہنچتے میرے اندیشوں کی بھی تصدیق ہو گئی۔ میں نے 2-3 پولیس والوں کو DIG کی قیامگاہ کے گیٹ پر نمودار ہوتے دیکھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی ان کے ہتھیار سیدھے ہوئے۔ زبردست دھماکوں سے 2 گولیاں سنسناتی ہوئی میرے سر پر سے گزر گئیں۔ جوابی فائر کرنے کے بجائے میں نے اپنی رفتار بڑھا دی۔ مجھ پر گولیوں کی دوسری باڑ ماری گئی، لیکن اس اثنا میں سڑک کا موڑ مڑ چکا تھا۔ میں تقریباً فضا میں پرواز کرتا اس طرف لپکا جہاں ڈاکٹر صنم کی گاڑی پوشیدہ تھی۔ مجھے دیکھتے ہی صدیقی نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ میں گھڑاپ سے گاڑی میں گھس گیا۔ گاڑی چلاؤ، میں نے ہذیانی لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر صنم نے گیئر لگا کر ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی نے بہت جلد رفتار پکڑ لی اور سنسان سڑک پر فراٹیں بھرنے لگی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اتنے کم وقفے میں کوئی بھی ہماری گاڑی کو نہیں دیکھ پایا ہوگا۔ صدیقی نے ڈاکٹر صنم کو مختصراً یہ تو بتا دیا ہوگا کہ ہم بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگے ہیں، لیکن یہ اسے بھی معلوم نہ تھا کہ میں نے ابتدا میں گرین سگنل دینے کے بعد اچانک خطرے کا سگنل کیوں دیا۔ خطرے کے احساس کے باعث ڈاکٹر صنم کی توجہ مکمل طور پر ڈرائیونگ پر مرکوز رہی، چنانچہ اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ کچھ دیر بعد ہم اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے۔ مرزا شاید گیٹ کے آس پاس ہی کہیں موجود تھا۔ اس نے تیزی سے گیٹ کھول دیا۔ ڈاکٹر صنم نے گاڑی کو اس کی جگہ پر کھڑا کر دیا۔ ہم تینوں گاڑی سے نکل آئے۔ میں نے صدیقی کو سہارا دینا چاہا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اسی اثنا میں مرزا بھی تیزی سے چلتا ہمارے پاس پہنچ گیا۔ اس نے صدیقی کو لنگڑاتے دیکھا تو اس کا چہرہ فک ہو گیا۔ خیریت تو ہے نا؟ کیا ہوا تمہیں؟ اس نے مضطرب لہجے میں پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، تم فکر مت کرو، چلو اندر چلتے ہیں۔ لاؤنج میں پہنچ کر ہم آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ مرزا نے بے تابی سے میری طرف دیکھا۔ تم بتاؤ ذوالفقار، تم لوگوں کے ساتھ کیا حالات پیش آئے؟ اچانک اسے میرے چہرے پر کوئی ایسی چیز نظر آئی جس نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اوہ، تو تم بھی زخمی ہو؟ نہیں، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، میں نے کہا۔ تمہارے چہرے پر کئی خراچیں اور اچانک اس کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور تم اپنی نورانی داڑھی بھی کہیں چھوڑ آئے ہو۔ میں نے جلدی سے اپنی ٹھوڑی پر ہاتھ پھیرا، باقی وہاں پر چند ہی بال چپکے رہ گئے تھے۔ باقی داڑھی شاید مہندی کی باڑ میں اٹکی رہ گئی تھی۔ مرزا کے توجہ دلانے پر ڈاکٹر صنم اور صدیقی نے بھی میری حالت کا جائزہ لیا۔ ان کے چہروں پر بھی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ آپ داڑھی کی بات کر رہے ہیں مرزا صاحب، ہم اپنی جان بچا کر لے آئے، یہی کافی ہے، ورنہ ہم دونوں کا قصہ تمام ہونے میں کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی تھی، میں نے شگفتہ لہجے میں کہا۔ لیکن میری بات سن کر وہ تینوں سنجیدہ ہو گئے۔ میں نے انہیں تفصیل سے بتایا کہ مجھے اس صدیقی کو کس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ صدیقی صاحب کو روکنے کا سگنل دینے کے بعد میں درخت سے اترا تو DIG اور اس کی بیوی کے آپس میں بات کرنے کی آواز سنی۔ خدا جانے وہ کون سی زبان میں بات کر رہے تھے، میری سمجھ میں تو ان کی ایک بات بھی نہیں آ سکی۔ البتہ DIG کی بیوی کی زبان سے نکلنے والے ایک لفظ نے مجھے بری طرح چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے فوراً صدیقی کو خطرے کا سگنل دے دیا۔ وہ کون سا لفظ تھا؟ ان تینوں نے بیک وقت پوچھا۔ ترمیتھی، وہ لفظ تھا ترمیتھی۔ اس رات اناج منڈی کے پچھواڑے اس برقع پوش بھارتی ایجنٹ نے اپنے زخمی ساتھی کو اسی نام سے پکارا تھا۔ یہ لفظ سنتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ یہ DIG اور اس کی بیوی بھی بھارتی ایجنٹوں کے گروہ کا ایک حصہ ہے۔ اوہ، تو یہ بات ہے، صدیقی نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا۔ گویا یہ آخری امید بھی ٹوٹ گئی۔ یہ DIG بھی دشمنوں کا اعلی کار ثابت ہوا۔ مجھے تو پہلے ہی تقریباً 100% اندازہ تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ سردار شاہ مراد جیسے مکار شخص سے ایسی توقع رکھنی ہی فضول ہے کہ اپنے کسی نازک پہلو کو اپنے دشمن کی تباہ آزمائی کے لیے کھلا چھوڑ دے گا۔ اسی خدشے کے باعث میں نے لمبی چوڑی منصوبہ بندی کی اور احتیاط کے تقاضوں کو پوری طرح مد نظر رکھا۔ البتہ میری بھی خواہش یہی تھی کہ میرے شک کی تائید یا تردید ہو جائے۔ صدیقی صاحب، آپ کو پاؤں میں چوٹ کیسے لگی؟ جس وقت تم نے مجھے خطرے کا سگنل دیا تو میں درخت کی آڑ سے نکل کر ان دونوں کی طرف چل پڑا تھا۔ اسی وقت جب تم نے الو کی آواز میں سگنل دیا، انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ دونوں بری طرح چونک پڑے۔ بدحواسی کے عالم میں جب میں واپسی کے لیے مڑا تو ان دونوں نے للکار کر مجھے روکنے کی کوشش کی۔ جب میں نہیں رکا تو وہ میری طرف سے مشکوک ہو گئے۔ عورت نے اپنے لباس سے ریوالور نکال کر مرد کو دے دیا۔ مہندی کی باڑ کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے مجھے ایک پتھر سے زبردست ٹھوکر لگی اور میں منہ کے بل اچانک گر پڑا۔ وہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ ذوالفقار میرے ہمراہ تھا، ورنہ میرا تو کام تمام ہو چکا ہوتا، کیونکہ اس لمحے میں بالکل نہتا تھا۔ ٹھوکر لگنے سے میرا پستول میرے ہاتھ سے چھوٹ کر جانے کس تاریک کونے خدرے میں جا پڑا تھا۔ ہم تو گرتے پڑتے وہاں سے نکل آئے، لیکن میرا پستول وہیں رہ گیا۔ صدیقی نے مایوس لہجے میں کہا۔
इसके लहजे में मायूसी पूरे माहौल में सरायत करके कुछ देर वहां मुकम्मल खामोशी तारी रही। बिलाखिर डॉक्टर सनम ने इस संगीन खामोशी का खात्मा जो हुआ सो हुआ इस पर मिट्टी डाले। खुदा का शुक्र अदा करें कि हमें किसी बड़े नुकसान से दो चार नहीं होना पड़ा। हम सही सलामत वापस लौट आए। ये समझे कि यह वाकया रूनुमा हुआ ही नहीं है। इसे असाब पर सवार किया गया तो हमारी हिम्मतें टूट जाएंगी। सदीकी साहब अब कल सुबह मेरे हमराह मुल्तान चले और वहां से इस्लामाबाद फोन करके अपने आला हुकाम से तमाम सूरत हाल पर तबादला ख्याल कर लें। सदीकी ने उसकी बात का फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। फिर मिर्जा ने थके थके लहजे में कहा, मेरे ख्याल में अब इस तजवीज़ पर अमल करना भी आसान नहीं रहा है। मेरा मतलब है शायद अब सदीकी का इस शहर से निकलना भी खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन क्यों? मैं आपकी इस बात का मतलब पूरी तरह नहीं समझ सकी हूँ। डॉक्टर सनम ने हैरान लहजे में पूछा। मिर्जा ने पुरमुर्दा मुस्कुराहट के साथ कहा, आप आज रात के इस वाक़े के मुज़मरात पर गौर नहीं कर रही हैं डॉक्टर साहिबा। इस सिलसिले में इन लोगों का शक फौरी तौर पर हमारी तरफ आएगा। हमारी तलाश के काम में तूफानी तेजी आ चुकी होगी। सदीकी वहां अपना पिस्तौल और जुल्फ़कार अपने वहां मेकअप का कुछ हिस्सा छोड़ आया है। भारतीय एजेंटों की माहिर नजरों से ये चीजें छुप नहीं सकेंगी। वो फौरी तौर पर समझ जाएंगे कि हम मुसल्लह होने के बावजूद मेकअप भी किए हुए थे। ये बात तो यकीनी है कि वो शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की कड़ी निगरानी कर रहे होंगे। इस वाक़े के बाद इस निगरानी में शिद्दत आ जाएगी। अब वो अपनी नज़रों के सामने से गुजरने वाले चेहरों पर मेकअप भी तलाश करेंगे। ये बात पहले ही हमारे नोटिस में आ चुकी है कि वो लोग शदीद तरीन साइंसी आलात इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है वो हमारी तलाश के लिए भी किसी ऐसी मशीन का इस्तेमाल करें जो मेकअप की निशानदही कर सके। बैरूनी ममालिक में ऐसी मशीनें एक तवील अरसे से इस्तेमाल की जा रही हैं। मिर्जा के मुंह से निकलने वाले अल्फाज की संगीनी को महसूस करके डॉक्टर सनम परेशान सी हो गई थी। तो फिर अब हम क्या करें? कुछ नहीं। फिलहाल हमारे लिए किसी बेहतर सूरत-ए-हाल के इंतजार के सिवा कोई चारा नहीं है। मिर्जा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज के इस वाक़े से हमारे दुश्मनों के इल्म में यह बात भी आ चुकी होगी कि हम लोगों की दस्तरस में एक गाड़ी भी है। शायद वो यहाँ तक भी अंदाजा लगा लें कि हमें किसी मकामी बाशिंदे का भरपूर ताउन हासिल है जिसने हमें पनाह दे रखी है। ऐसी सूरत हाल में आपकी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है। मैंने डॉक्टर सनम के चेहरे पर मिर्जा के अल्फाज का रद्द-ए-अमल तलाश करना चाहा। मुझे उसके चेहरे पर खौफ के बजाय अज़्म के तासरात नजर आए। मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है। मौत को तो एक ना एक दिन आना ही है, तो फिर क्यों ना अपने मुल्क को कौम के लिए जान दे दी जाए। इससे अच्छी मौत भला और कौन सी हो सकती है। मैंने हैरानी से उसकी शक्ल देखी। इस लम्हे वो मुझे बिल्कुल ही अजनबी सी औरत नजर आई। आपके जज्बात काबिल तहसीन है डॉक्टर साहिबा। आप वाकई एक सच्ची और मुहब्बत वतन खातून है, सदीकी ने संजीदा लहजे में कहा। इस रात हम खासी देर तक आपस में सलाह मशवरे करते रहे। बिलाखिर यही तय पाया कि फिलहाल एक तो दिन अपनी सरगर्मियां मौकूफ रखी जाएं। मुमकिन है इस दौरान में मेनू उस्ताद फोन पर राब्ता करे। अगर उसने कोई अहम इतला दी तो इस इतला की रोशनी में अपना आइंदा का लाहे अमल तरतीब लिया जाए। रात को देर से सोने के बायस हम लोग सुबह खासी देर से बेदार हुए। डॉक्टर सनम नाश्ता तैयार करने के लिए किचन में घुस गई, जबकि मैं ताज़ा अखबार उठाने के लिए गेट की तरफ चला गया। मैं गेट के अंदर पड़ा अखबार उठाने के लिए झुका ही था कि गेट के ऐन सामने किसी भारी गाड़ी के ब्रेक चिरचिराए। मैंने चौंक कर उस तरफ देखा। मुझे यूं लगा जैसे मेरा हाथ बिजली के नंगे तार को छू गया हो। सनसनाती आंखों से मैंने देखा कि गेट के बिल्कुल सामने एक लैंड क्रूजर जीप खड़ी है। कबल इसके कि मैं कोई रद्द-ए-अमल जाहिर करता, जीप के दरवाजे खुले और इसमें से 3 क्लाशनकोव परदार अशखास छलांग लगाकर उतरे और खूनी नजरों से मुझे घूरते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगे। खतरे की तेज झंझनाहट ने मेरे रोंगटों को इस्तादा कर दिया। अगले चंद लम्हों में कितने ही भयानक अंदेशों ने बिजली की चमक के मानित मेरे दिमाग की दुनिया चकाचौंध कर डाली। मुझे अपने हाथ पैरों से जान निकलते महसूस हुई। शायद मेरा आखिरी वक्त आन पहुंचा था। मेरे शिकारी बिलाखिर मुझे ढूंढ निकालने में कामयाब हो ही गए। वहशतज़दा सूरतों के हामी ये खूनखार कबायली मेरे खैर खा तो नहीं हो सकते थे। मुझे महज चंद लम्हों की मोहलत मिली, लेकिन मैं इस मोहलत से फायदा नहीं उठा सका। वो तीनों सीधे गेट पर आन पहुंचे। दरवाजा खोलोए, इनमें से एक ने बेहद अकड़ और तुंद लहजे में मुझे हुक्म दिया। मेरे वजूद में गुस्से की हल्की सी चिंगारी उड़ी। मैंने इस इश्तियाल की चिंगारी को नजरअंदाज करते हुए अपने मुखातिब का जायजा लिया। वो तकरीबन 40 बरस का घनी ताड़ी मूंछों का हामिल तराज कामिल शख्स था। इसके हाथ में चाइना साख्त क्लाशनकोव थी, लेकिन वो राइफल उसने अपने दाएं हाथ में थाम रखी थी। इसके दोनों साथियों का हुलिया भी मुझे उससे मिलता जुलता नजर आया। इन तीनों के हाथ में क्लाशनकोव राइफलें थीं, लेकिन इनकी नालों का रुख मेरे सीने की जानिब नहीं था। गोया मेरी जिंदगी को फौरी तौर पर कोई खतरा नहीं था कि अगर मेरे दुश्मन हैं भी तो फौरी तौर पर मुझे पहचान नहीं सके। सुना नहीं तूने? दरवाजा खोल जल्दी से। तराज कामिल शख्स ने एक बार फिर इश्तियाल अंगेज लहजे में मुझे ललकारा। आप तमीज से बात करें जनाब। मैं फौरी तौर पर अपनी हिकमत अमली तय करते हुए साफ सुथरे मुहज्जब लहजे में एहतजाज करने लगा। आपको मुझसे इस अंदाज में बात करने का कोई हक नहीं है।
आप कौन लोग हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? मेरे लहजे और मेरी गुफ्तगू के अंदाज ने इस पर फौरी असर किया। इसने अजीब से अंदाज में मुझ पर नजर डाली, फिर उसने अपने लहजे में किसी कदर नरमी पैदा करते हुए पूछा, तुम कौन हो और इधर क्या कर रहे हो? इखलाकी तौर पर यह पहले आपका फर्ज बनता है कि आप अपना तारुफ कराएं और अपनी आमद का मकसद वाजे करें। मैंने बदस्तूर नरम लहजे में कहा, तुम इधर डॉक्टरनी के बंगले पे कैसे मौजूद हो? तुम्हारा यहाँ क्या काम है? उसके लहजे में एक बार फिर तेजी पैदा होने लगी थी। मैं डॉक्टर साहिबा का मेहमान हूँ, आप फरमाइए, आप हजरात किस इरादे से यहाँ तशरीफ लाए हैं? मैंने पूरे एतमाद लहजे में कहा। उसने कदरे तजब्जुब के बाद कुछ कहना चाहा। एन इसी वक्त मेरी नज़र गेट के सामने मौजूद लैंड क्रूजर के दरमियानी दरवाजे पर पड़ी। मैंने देखा कि जीप से अधेड़ उम्र का म्याना कामत शख्स उतर रहा है। कदरे भारी जुस्से का हामिल होने के बावजूद वो खासा चाको चौबंद था। पलक झपकते में वो बंगले के बंद गेट पर पहुंच गया। क्या बात है मंजूर, ये छोकरा कौन है? इसकी रौबदार आवाज सुनकर तीनों क्लाशंकोव परदार एहतराम के साथ इधर उधर हट गए। वो शख्स सीधा मेरे रूबरू आन खड़ा हुआ। मुझे उसके बारीक मूंछों के नीचे मौजूद लबों पर एक अजीब सा तंजिया तबस्सुम नजर आया। इसकी कलाई पर बंदी सुनहरी राड उखड़ी धूप में चमक रही थी। बिल्कुल ऐसी ही चमक मुझे उसकी आंखों में नजर आई। एक लम्हे के लिए मुझ पर रोब सा तारी हुआ, लेकिन मैंने इस एहसास को खुद ही हावी होने नहीं दिया। पता नहीं सरदार जी, मैं इससे यही पूछ रहा था, ये बताता नहीं है? मंजूर ने मुदबाना लहजे में बताया। तो ये बात है, सरदार ने अपनी गूंजदार आवाज में कहा। अचानक मुझे लगा कि मैं इस शख्स को पहले भी कहीं देख चुका हूं। मैंने बगौर उसे देखा। इस बार मुझे उसका चेहरा पहले से भी बढ़कर मानूस लगा। मंजूर ने उसके कान में कुछ कहा। इसकी बात सुनकर सरदार ने एक बार फिर बगौर मेरे चेहरे पर नजर डाली। इसलिए मुझे उसकी आंखें काले नाग की आंखों जैसी नजर आई, चमकदार, साकित, अपने शहर में जकड़ लेने वाली। तो आप डॉक्टर सनम के मेहमान हैं? इस बार उसने अपने माफी ज़मीर के इजहार के लिए साफ सुथरी उर्दू का सहारा लिया। अलबत्ता मुझे उसके लहजे में तंज की वाज़ेह झलक महसूस हुई। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपका डॉक्टर सनम से क्या रिश्ता है? उसका सवाल सुनकर मैं एक लम्हे के लिए गड़बड़ा सा गया था। आप मुझसे पूछगछ करने वाले होते कौन हैं? क्या किसी मेहमान के लिए जरूरी है कि वो मेजबान का रिश्तेदार हो? मैंने झुंझला कर कहा। मुझे लड़ने की कोशिश न करो छोकरे, उसने कदरे खख्त लहजे में कहा। एक जवान तनहा औरत के पास कोई नौजवान लड़का बगैर किसी ताल्लुक और रिश्ते के कैसे मेहमान बन सकता है? तुम इतने बच्चे भी नहीं हो कि मेरी बात का मतलब न समझ सको। तुम्हारे बेहतर यही है कि मुझे अपने मुताल्लिक सही सही बता दो। मैं? लेकिन जनाब, पहले आप ये तो बताइए कि आप आखिर हैं कौन? अच्छा छोड़ो इस बात को, तुम डॉक्टर सनम से कहो कि सरदार रबनवाज उससे मिलने के लिए आया है। इसका नाम सुनते ही मेरे ज़हन के पर्दे पर से धुन सी छट गई। मैंने उसे पहचान लिया। सरदार रबनवाज इलाके का बहुत बड़ा जागीरदार और सियासतदान। इसके साथ ही मुझे एक अजीब सी उलझन ने घेर लिया। इस शख्स का डॉक्टर सनम से क्या वास्ता हो सकता था? मैंने पुरख्याल अंदाज में घर के अंदर वाले हिस्से की जानिब कदम बढ़ा दिए। डॉक्टर सनम मुझे नाश्ते की तैयारी में मसरूफ नजर आई। मुझे देखकर उसके लबों पर मुस्कुराहट उभर आई। डॉक्टर साहिबा, सरदार रबनवाज आपसे मिलने आया है, मैंने धीमी आवाज में कहा। मेरी जुबान से निकलने वाले अल्फाज उसके समात पर बिजली बन कर गिरे। उसके हाथ बुरी तरह कपकपाए। चीनी की प्लेट उसके हाथ से छूटी और पुख्ता फर्श पर गिरकर चूर चूर हो गई। वो सफेद पड़ते चेहरे के साथ फटी फटी आंखों से मेरा चेहरा देखने लगी। इसकी हालत देखकर मुझे हैरत के साथ साथ हल्के से एहसास जुर्म की भी चुभन महसूस हुई। सरदार रबनवाज, उसने सरगोशी नुमा आवाज में कहा। मैंने उसके सवाल का जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं की। रफ्ता रफ्ता उसने खुद को संभाल लिया। अच्छा, सरदार रबनवाज आया है, ठीक है, मैं उससे बात कर लेती हूँ। तुमने उसे अपने मुतालिक क्या बताया? उसने मुझे जस्टिस लहजे में पूछा। कुछ भी नहीं, बस ये कहा कि मैं आपके यहाँ मेहमान हूँ, मैंने सादगी से कहा। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासरात उभर आए। ठीक है, मैं इससे खुद बात कर लेती हूँ। मैं जो कुछ कहूँ आप उसकी तायीद कीजिएगा। लेकिन ये तो आपने बताया ही नहीं कि ये सरदार रबनवाज है कौन, और ये सजीव अंदाज में आपके मुतालिक बाजपुरस क्यों कर रहा है? मैंने उलझे हुए लहजे में सवाल किया। डॉक्टर सनम का चेहरा एक बार फिर फीका पड़ गया। वो मैं तुम्हें कैसे बताऊं? उसने अजीब सी बेबसी के आलम में कहा। वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने साफ इनकार कर दिया है। इसके बावजूद वो मुझ पर अपना हक समझता है। तो मैं देखकर वो शक को शुबे में पड़ गया होगा। तो मिर्जा और सदीकी साहब को तमाम सूरत हाल समझा दो। मैं इस बदबख्त को गेट पर से ही दफा करने की कोशिश करूंगी, लेकिन हो सकता है वो अंदर आने पर इसरार करे। याद रखो, तुम मेरे साहब का साथी डॉक्टर वजाहत के छोटे भाई हो, जो निश्तर अस्पताल में मेरे हमराह हाउस जॉब कर चुका है। तुम लोग चंद दिन के लिए मेरे पास मेहमान आए हो। मिर्जा और सदीकी तुम्हारे दोस्तों का किरदार अदा करेंगे। डॉक्टर सनम ने जल्दी जल्दी अपनी बात मुकम्मल की। मेरे ज़हन में बैक वक्त कई सवालात उभरे, लेकिन मैंने महज इस बात में गर्दन हिलाने पर इक्तिफा किया। वो मुस्तरिब अंदाज में चलती घर के सदर दरवाजे की तरफ बढ़ गई।
मैंने सदीकी और मिर्जा के कमरे में पहुंचकर इन्हें सरदार रब नवाज के मुतालिक बताया। मेरी बात सुनकर वो दोनों बुरी तरह परेशान हो गए। ये क्या मुसीबत आ गई जुल्फकार? मिर्जा ने धीमी आवाज में कहा। ये सरदार रब नवाज कौन है? ये भी सरदार शाह मुराद की तरह एक बहुत बड़ा जागीरदार और सियासतदान है। ये 2 बार सरदार शाह मुराद के मुकाबले आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाब लड़ चुका है, लेकिन दोनों बार नाकाम रहा है। मैंने मुतफक्कर लहजे में उसे बताया। लेकिन वो यहाँ क्यों आया है? सदीकी ने सवाल किया। मैंने उन्हें मुख्तसरन तमाम सूरत-ए-हाल से आगाह किया। मेरे अंदाजे के मुताबिक डॉक्टर सनम सरदार रब नवाज को टालने में नाकाम रही। मैंने उनकी आपस में बातें करने की आवाज़ें सुनी, फिर वो दोनों लाउंज में पहुंच गए। तुम बहुत शक्की हो रब नवाज, हर एक पर शक करने लगते हो। ये लोग तो बड़ी मुश्किल से मेरे बेहद इसरार पर चंद दिन के लिए मेरे मेहमान बने हैं। डॉक्टर सनम ने बेतकल्लुफाना लहजे में उसे समझाया। लेकिन मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम जल्द अज जल्द अब छोड़ो भी, तुम इस बात के पीछे ही पड़ गए हो। मैंने तुम्हें बताया ना कि ये लोग 1-2 दिन में जाने वाले हैं, लेकिन मैं इनकी तुम्हारे घर में मौजूदगी एक लम्हे के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने सरदार रब नवाज की गजबनाक आवाज सुनी। तुम इन लोगों को अभी और इसी वक्त बस सरदार रब नवाज, बहुत हो चुका। तुम ये चीखना चिल्लाना बंद करो। मैं तुम्हारी जरखरीद लोंडी हूं, न मामूली खेत मजदूर जिस पर तुम इस तरह हुक्म चला रहे हो। मैंने डॉक्टर सनम को भिपरे हुए लहजे में कहते सुना। वो मेरे मेहमान हैं, जब तक मेरी मर्जी होगी मेरे घर में रहेंगे। तुम्हें मेरा चौकीदार बनने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर सनम के जारहाना लहजे को सुनकर हम तीनों परेशान हो गए। खुदा जाने इस नीम वैशी शख्स पर इन अल्फाज का क्या असर हो। कहीं गुस्से में आकर ये उसे कुछ जिस्मानी नुकसान पहुंचाने पर न तुल जाए। मैं तेजी से कमरे के दरवाजे के पास जा खड़ा हुआ। अपना पिस्तौल मैं पहले ही काबू कर चुका था। मेरे एक इशारे पर वो मेरे हाथ में मौजूद होता। चंद लम्हों तक लाउंज में खंबीर खामोशी छाई रही। फिर मैंने सरदार रब नवाज की बेहद धीमी आवाज सुनी। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम गुस्सा ना करो। इसके रवैये में ऐसी इनकलाबी तब्दीली देखकर मैं भौंचका रह गया। मुझे लगा कि डॉक्टर सनम की नाराजगी ने इसके गुस्से को झाग की तरह बिठा दिया है। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने आया हूं। तुम सुनोगी तो झूम उठोगी, सरदार रब नवाज ने मसरूर लहजे में कहा। ऐसी कौन सी खुशखबरी लेकर आए हो तुम? डॉक्टर सनम ने सादगी से कहा। यह बहुत राज की बात है, फिलहाल किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। सरदार रब नवाज का लहजा मजीद धीमा हो गया। फिर उसने डॉक्टर सनम के कान में एक तवील सरगोशी की। तो ये बात है, डॉक्टर सनम ने गहरा सांस लेते हुए कहा। तो तुम इसलिए खुश हो रहे थे? क्या ये खुशी की बात नहीं सनम जान? सरदार रब नवाज ने नाज भर लहजे में कहा। यह जानवान छोड़ो, इंसानों की तरह बात करो। ये खुशी की बात होगी तुम्हारे लिए, मेरा इससे क्या वास्ता? डॉक्टर सनम ने सर्द लहजे में कहा। इसकी सर्द महरी महसूस करके सरदार रब नवाज चंद लम्हों के लिए सटपटा सा गया। फिर उसने खुद को संभालते हुए ठीठ मुस्कुराहट के साथ कहा। क्यों, तुम्हारा इस खुशखबरी से वास्ता क्यों नहीं? हम दोनों कोई गैर तो नहीं है। मैं तुम्हें एक बार फिर कह रही हूं कि मुझसे तमीज से बात करो। ऐसा ना हो मैं तुम्हारी तमाम तर खुशफहमी एक पल में खाक में मिला दूं। मेरा ख्याल है तुम मुझसे जो बात करना चाहते थे वो कर चुके हो। लिहाजा अब यहां से रवाना होने की कोशिश करो। मुझे अपने मेहमानों को नाश्ता देना है। डॉक्टर सनम ने बेजारी से कहा। बहुत ख्याल है तुम्हें अपने मेहमानों का? सरदार रब नवाज के लहजे से एक बार फिर हसरत टपकने लगा। टाडा सोना छोकरा है तुम्हारा मेहमान। कितने दिन मेहमान रखने का इरादा इन लोगों को? तुम मुझसे ये सवाल और जवाब करने वाले होते कौन हो? मेरा जब तक जी चाहे मैं इन्हें रखूंगी। मुझे गुस्सा ना दिलाओ सनम जी, याद रखो मेरा नाम सरदार रब नवाज है। मैं, उसने गुस्सीले लहजे में कोई खौफनाक धमकी देना चाही, लेकिन डॉक्टर सनम ने उसकी बात के दरमियान ही उसकी बात काट दी। बस मुझे धमकी वमकी देने की कोशिश मत करो। तुम अगर सरदार रब नवाज हो तो याद रखो मेरा नाम भी डॉक्टर सनम खान है। मैं ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती हूँ। ऐसा न हो तुम्हें बाद में पछताना पड़े। डॉक्टर सनम के लहजे की तपश में एक बार फिर इजाफा होने लगा। एक बार फिर मेरे रगे पैर में इज़्तिराब पैदा होने लगा। मेरी समझ में नहीं आया मैं इन दोनों के बाहिमी ताल्लुक को क्या नाम दूं। वो दोनों पल में शोले की तरह भड़कने लगते तो अगले लम्हे शबनम बन जाते। डॉक्टर सनम के लहजे में जाहरियत ने सरदार रब नवाज को एक मरतबा फिर पसपा होने पर मजबूर कर दिया। इसका लहजा एक मरतबा फिर मुआज़त खाना हो गया। डॉक्टर सनम ने एक बार फिर इससे चले जाने को कहा। अच्छा भाई, मैं जा रहा हूँ। मैं भी चंद दिनों तक शहर वाली कोठी ही में हूँ। फुर्सत मिले तो आज शाम या कल सुबह फिर चक्कर लगाऊंगा। फुर्सत को तो छोड़ो, मुझे मालूम है तुम आज ही शाम फिर यहाँ दमकोगे। मुझे तुम्हारी तमाम मसरूफियात का अच्छी तरह इल्म है। डॉक्टर सनम ने तंजिया भरे लहजे में कहा। सरदार रब नवाज उसकी ये बात सुनकर के स्याना सो गया। अरे नहीं भाई, मैं आजकल वाकई बहुत मसरूफ हूँ। जब से ये नई सूरत हाल पैदा हुई है ना, मुझे सर खुजाने की फुर्सत नहीं है। ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है, इसीलिए तो तुम यहाँ खड़े फजूल पक किए जा रहे हो। वाकई तुम्हें सर खुजाने की फुर्सत नहीं है। डॉक्टर सनम ने तंज से भरपूर लहजे में कहा।
इस बार वो इस बुरी तरह झींपा कि एक लफ्ज भी मुंह से निकाले बगैर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मिर्जा और सदीकी ने मानी के नजरों से मेरी तरफ देखा। मैं इत्मीनान की गहरी सांस भरकर इन दोनों के पास आ बैठा। सरदार रब नवाज को गेट तक पहुंचाने के बाद डॉक्टर सनम भी इसी कमरे में आ गई। वो चंद लम्हों तक शायद हम दोनों के बोलने की मुंतजिर रही। जब हमने किसी किस्म का सवाल नहीं किया तो वो खुद ही वजाहत करने लगी। ये शख्स कुछ सर फिरा सा है, कभी कभी बिल्कुल पागलों की सी हरकतें करता है। मैं इसकी चंद दुखती रगों से वाकिफ हूँ, लिहाजा ये मेरे सामने आपे से बाहर नहीं निकल सकता। रुपए पैसे माल जायदाद की कमी नहीं, लिहाजा सियासत को फारिग औकात के मशगले के तौर पर अपनाया हुआ है। 2 बार सरदार शाह मुराद से शिकस्त खा चुका है, लेकिन हिम्मत हारने पर तैयार नहीं है। पहले से शादीशुदा है, लेकिन मुझसे शादी करने के लिए बाजिद है। इससे उम्मीद है कि ये कभी न कभी मेरा दिल जीतने में कामयाब हो जाएगा। आपने बताया कि ये शख्स इस इलाके का खासा ताकतवर जागीरदार है। मिर्जा ने खासे पुरजोश लहजे में सवाल किया। हाँ, सरदार रब नवाज वाकई बहुत बड़ा जागीरदार है, डॉक्टर सनम ने सादगी से कहा। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? मैंने मिर्जा के अंदाज़े गुफ्तगू में वाज़े तौर पर हैजानी कैफियत महसूस की। इसके सरदार शाह मुराद से कैसे ताल्लुकात हैं? मैंने आपको बताया ना कि सरदार रब नवाज 2 मरतबा सरदार शाह मुराद के मुकाबले में इंतखाब लड़ चुका है। जाहिरी सी बात है, ऐसी सूरत में इनके बाहमी ताल्लुकात तो खुशगवार नहीं हो सकते। वो दोनों एक दूसरे के लिए हरीफाना जज्बात रखते हैं। अलबत्ता इन दोनों में कभी बराह रास्त तसादुम नहीं हुआ है, क्योंकि सरदार शाह मुराद सरदार रब नवाज की निस्बत ज्यादा ताकतवर और बारसूख है। इससे बराह रास्त टकराव की सूरत में सरदार रब नवाज शदीद नुकसान उठा सकता है। ये शख्स सरदार रब नवाज हमारे बहुत काम आ सकता है, मिर्जा ने पुरतफक्कुर लहजे में कहा। इसकी बात सुनकर हम तीनों बुरी तरह चौंक उठे।